Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. और आप अपने सारे lectures complete कर रहे हैं time पे और please करते रहिए and ऐसे hard work करते रहिए. So now we'll be starting a new lecture of center of mass. This is the third lecture and in the last lecture we had learned something about motion of center of mass कि अगर आपके center of mass की अगर हम बात करें उसके acceleration की बात करें so if the net force on the complete system, we are not talking about the individual particles in that system, if net force on that complete system is zero, then acceleration of center of mass is going to be zero, change in velocity of center of mass is going to be zero, because of which if the initial velocity of center of mass was zero, it is velocity is going to remain zero, मतलब वो नहीं चलेगा. If it was at rest, it is going to remain at rest. Its displacement will be zero, so center of mass is basically it is not going to get displaced, its location is not going to change. If the center of mass was having some initial velocity, तब क्या होगा? अगर उसके पास कुछ initial velocity थी, then it will continue to move with the same velocity. Clear है ये चीज? फिर अगर net force zero नहीं है, तो फिर उसके बाद उस केस में क्या होगा? Center of mass का acceleration होगा. But that case we are going to study later. Also the case of having some velocity of center of mass initially, that case also we are going to study later. अभी हम क्या पढ़ेंगे कि भाई net force on the system is zero. Definitely the particles or the objects in that system, they may apply forces on each other, they may have some acceleration, but the net force on that complete system is zero, because of which center of mass will have zero acceleration. And we are taking the case here that initial velocity of center of mass is zero. It means the center of mass is at rest initially, so after some time वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर कुछ चेंजेस इंटरनली हो भी जाते हैं इनसाइड दैट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, उसको वो जिद्दी बना रहेगा. ही इज गोइंग टू रिमेन एट दैट लोकेशन ओनली. इट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड, इट्स लोकेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो उस केस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास आता है if we have two particle system, then m1 delta x1 is equal to minus of m2 delta x2. Clear? And now we are going to use this. ठीक है, m1 delta x1, it means delta x1 is displacement of first mass, delta x2 is displacement of second mass. We are talking about a particular direction. Here we are talking about the x direction. If net force in x direction is zero, then this will get satisfied in x direction. If in y direction this is net force is zero, then this is getting satisfied in the y direction. Similarly, I can write delta x1 by delta x2 is equal to m2 by m1. If we just talk about the magnitude, then delta x1 by delta x2, or here we can write magnitude, is equal to m2 by m1. ठीक है, so delta x1 by delta x2 is equal to m2 by m1. Clear है चीज? So now we are going to solve some problems on this only. So here this is the case when we are taking initial velocity of center of mass as zero and net force on the system of particle, net force on that complete system is zero. The particles inside that system or the bodies inside that system can have a non-zero acceleration, can have a non-zero force, they can apply force on each other, and that force may become internal, because of which the net force on that complete system will appear to be zero. Clear? So your first question is that you have a wooden plank of mass capital M and length capital L. A man is standing on this wooden plank and the man is moving from one end to another end, and this complete system is kept on a smooth horizontal floor. This complete system is kept on a smooth horizontal floor. So what is the displacement of this wooden plank on this smooth floor when the man moves from one end of the plank to other end of the plank? So question is, what will be the displacement of this wooden plank when man moves from one end of the plank to the other end of the plank? Clear? So this is the question we have to solve. Next question is, we have a wedge of mass capital M. Again it is kept on a smooth floor. Its mass is capital M and a block of small m mass is kept here. So what will be the displacement of this wedge when the block of mass m reaches to the bottom? What will be the displacement of this wedge when this block reaches to the bottom? So we will solve these two questions first. So now what is happening?
will study why this plank is moving and why the center of mass will not get displaced. So here if you see, this man is going to move on this plank. When it is moving on this plank, it needs a friction, and that friction will be provided from the plank. Definitely there will be a friction acting between plank and the feet of the man. So it means the man is moving like this and it is going to push the plank like this, है ना, कुछ इस तरीके से होगा. It is going to provide the friction to the plank in backward direction. Clear? So when the man is moving in this direction, it needs a friction in forward direction, and as a reaction, wooden plank will have a friction in backward direction, and because there is no other force in x direction on this particular wooden plank, this plank will move in backward direction. Clear है चीज? आपने फील भी किया होगा, अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पे, इफ यू आर ऑन अ स्लिपरी सरफेस और वहां पे कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, उस पे अगर आप चलते हो, प्लेटफॉर्म पीछे खिसक जाता है. व्हेन यू वॉक लाइक दिस, प्लेटफॉर्म गोज बैक. आप वीडियोस देख सकते हो, व्हेन जो लोग आइस पे स्केटिंग वगैरह करते हैं, वो जब उस पे चल रहे होते हैं तो क्या होता है, प्लैंक पीछे मूव करने लगता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म पीछे मूव करता है. So basically it is providing a friction in backward direction and this wooden plank is providing a friction to the man in forward direction. ठीक है, और इसका और एक केस क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या होना है, because there is no net external force on this system in x direction. देखते हैं कैसे. So इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट, इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया. क्लियर है ये चीज. सो इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया, इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया. इफ यू सी दिस एज कंप्लीट सिस्टम, इस पूरे को अगर आप कंप्लीट सिस्टम लेते हो, द फ्रिक्शन हैज बिकम इंटरनल फोर्स एंड नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन इज 0. इसको मैंने पूरे को एक सिस्टम मान लिया ऑफ मास m स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो क्या इस पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं, इस पे कोई फोर्स नहीं, इस पूरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिकॉज दिस इज द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. सो फोर्स इन net force in x direction on m plus m system is equal to 0. Net force in x direction on this system is 0. Individually they are applying forces on each other, but for the complete system it is 0. Clear है? तो ये चीज हम कहाँ देखते हैं, जब आप बोट से उतर रहे होते हो, when you are landing on the या फिर you are jumping on the land from दी बोट. तो उसमें क्या होता है, आप फ्रिक्शन लगाया, आपको जंप करने के लिए तो कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए ना. सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यू आर गेनिंग अ फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन दी बोट. तो आपने उसको पीछे पुश किया, यू आर प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन टू दी बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यू गेट अ फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आप फिर जंप कर पाते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दी बोट, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जो रेजिस्टेंस फ्रॉम वाटर और द फ्रिक्शन फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल. सो अब क्या होगा, अब बोट प्लस मैन या फिर बोट प्लस यू सिस्टम पे देयर इज नो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज वाटर से तो कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है. सो नाउ इफ इन दैट डायरेक्शन नेट फोर्स इज 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होनी चाहिए. बट नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम दी you are moving away from that boat. So when there is a body changing its location, center of mass change हो सकता है. So to compensate that effect, boat क्या जाती है, पीछे भाग जाती है. आप जब इधर गए, boat पीछे भागी. हमने एक एग्जांपल देखा था कि भाई यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है. Now it is moving with v velocity and now its mass is m, its mass is m. Let's say it is moving with v dash velocity and we want to find out what is the v dash velocity. If the question is that this location of center of mass is not going to change, अगर location of center of mass is not going to change, तो जितना ये इधर चलेगा उतना इसको इधर चलना पड़ेगा. Because अभी क्या है, अभी both are symmetric. This is distance d, this is distance d. Clear है? तो यहाँ पे क्या है, दोनों सिमेट्रिक है. तो थोड़ी देर बाद अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये इधर जितना बढ़ेगा उतना इसको भी इधर बढ़ना पड़ेगा. अगर ये इधर जाएगा तो इसको भी इधर जाना पड़ेगा. तभी तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर अबाउट दिस पॉइंट these two particles are going to get located symmetrically, and then only the center of mass, location of center of mass will remain unchanged. So when there is a movement in one particle or one body of the system, there will be a movement in another body of the system to compensate the displacement or to compensate the effect of displacement of one body on the location of center of mass. क्योंकि अगर ये इधर शिफ्ट हो गया, अगर ये इधर शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास तो कहाँ है, ये अगर मान लो यहाँ से शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे था, तो सेंटर ऑफ मास अब इन दोनों के सिमेट्रिकल या फिर मिड पॉइंट पे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ जाएगा. टू कंपनसेट दैट ये क्या करेगा, ये इधर भाग जाएगा. आई एम सॉरी,
टू कंपनसेट दैट ये क्या करेगा, इधर भाग जाएगा। तो अब क्या है, एक मास यहाँ पे है और दूसरा मास यहाँ पे है, तो अब इनके मिड पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। सो व्हेन वन बॉडी इज मूविंग अनदर बॉडी विल हैव टू मूव इफ द सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग इट्स लोकेशन। क्लियर है। अब उसका हमने ये भी मैकेनिज्म देख लिया कि व्हाई एग्जैक्टली दिस प्लैंक इज गोइंग टू मूव। अगर मैन इस साइड मूव करेगा, अगर मैन इस साइड मूव करेगा तो प्लैंक को वो इस साइड मूव करने पे मजबूर करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस पे मिल रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो प्लैंक इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हमने डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस। सो अब यहाँ पे क्या है कि हमने नया जो सिचुएशन थी वो बनाया, हमने नई सिचुएशन बनाई जब द मैन हैज कम टू अनदर एंड ऑफ द प्लैंक। सो इनिशियली क्या था, इनिशियली सिस्टम वाज लाइक दिस एंड देन हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैन जो प्लैंक है वो इस साइड x से शिफ्ट हो गया, x से शिफ्ट हो गया तो इधर ये x बढ़ गया है। ठीक है, नाउ प्लैंक इज हियर, इधर भी अगर ये x से शिफ्ट हुआ है तो इधर भी x से शिफ्ट होगा। ठीक है, तो नाउ प्लैंक इज हियर। और अब मैन कहां पे है, मैन कहां पे इस केस में, सो मैन हैज कम टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, सो मैन इज हियर नाउ। मैन कहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो अब जो न्यू सिचुएशन है, न्यू जो इनका सेटअप है मैन प्लस प्लैंक का, तो वो कैसा है, इस तरीके से है। प्लैंक इज लाइक दिस, इट हैज शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन बाय x, it has shifted in this direction by x and man has come from one end to the other end. Clear है। अब आप क्या कर रहे हो भाई, when you are saying that net force on this system in x direction is 0, definitely आप बाहर खड़े हो और आप कह रहे हो ना, because you are observing this complete system, तो आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ तो बैठ नहीं सकते। So when you are observing from ground, आप बोल रहे हो कि हाँ on this system net force is 0, so center of mass of this system is not going to change its location. Now what we'll do, we'll see the individual displacement of the particles, individual displacement of the particles, and we are going to use this equation. So if you see what is the displacement, what is the displacement of Planck, so displacement of Planck is x in this direction, so it is minus x. Displacement of Planck is minus x because it is x and it is in this direction. Now displacement of man, can you find out the displacement of man? देखो कहां पे था और कहां पे पहुंच गया। So initially it was here and now it is here. So अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे क्या है कि man has moved on the plank. Plank के ऊपर कितना चला है वो? Plank के ऊपर चला है वो L. It has moved from one location to one end of the plank to other end of the plank. तो वो कितना चल के आया होगा? L distance चला होगा ना, तभी तो यहाँ पहुंचा। लेकिन it has traveled that L distance on the plank. भाई plank खुद भी तो चल के उधर भाग गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर चल के आया था L, लेकिन प्लैंक इधर खुद भाग गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऐसे L चल के गया और प्लैंक उसको इधर ले आया, तो कितना ले आया, L minus x. L इधर गया मैन एंड बिकॉज ऑफ प्लैंक इट हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, हाउ मच, minus x. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m इज L minus x. और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो वो कहां से कहां पहुंचा, इस लोकेशन से इस लोकेशन पे पहुंचा है। So this total is L, this is x, so L minus x, this is L minus x. So man has moved how much distance, L minus x, in which direction, in this direction. Clear, it has moved L minus x distance in this direction. So now we will use that. So this is m1 and this is m2. ऐसे ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। m1 is m, delta x1 is minus x is equal to m2 is यहाँ minus, m2 is small m and x delta x2 is L minus x. तो minus से यहाँ minus cancel, mx is equal to ml minus mx. So x is equal to small ml divided by m plus m. This is the displacement of Planck. So when the man will move from one end to the other end of the plank, the plank will move or the plank will get shifted by ml divided by capital M plus small m. यहाँ पे ऊपर small m into capital L divided by m plus m. Clear? So same in the same way we are going to see this problem. So now here what is happening? Here because of mg sin theta,
because of mg sin theta the block is coming down. It is coming down because of mg sin theta. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये इधर अगर शिफ्ट हो रहा है तो और ये अगर यहीं पे बना रहा तो सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने लगेगा, है ना. तो इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये बेसिकली x में, हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज इज पॉसिबल ओनली इन x डायरेक्शन, ये y में चलने वाला तो नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या है, when it is moving in this direction, so इसका क्या हो रहा है, x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. So when it will reach to the bottom, it will have some displacement in x direction. ये x में कुछ चल चुका होगा. Now if this mass is moving in x in this direction, तो सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे उधर खिसकने लगेगा. बट हमको नहीं चाहते, तो प्लैंक क्या करेगा, बोलेगा चलो इसको कंपनसेट करते हैं, वो धीरे धीरे इधर भागेगा. तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उधर जाने वाला था, लेकिन बिकॉज प्लैंक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ मास फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा. सो व्हेन दिस इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस वेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन, देन ओनली सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन, और द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड. अब हम देखते हैं कि व्हाट फोर्स इज मेकिंग दिस वेज टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो अगर आप किसी इंस्टेंट पे देखो, मान लो हमने यहाँ पे देखा, सो व्हाट इज हैपनिंग, mg sin theta is acting on this because of which it is coming down. Normal is acting on this, ठीक है, जो कि इसके mg cos theta के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा. इधर mg cos theta के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा. Now when this wedge is applying a normal force on this block is also applying a normal force on this wedge. So on this wedge there is a normal force. Now it will have two components. एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा. क्लियर है. नाउ यहाँ पे क्या है, ये जो कंपोनेंट है वो तो mg और यहाँ से नॉर्मल मिलके बैलेंस कर लेंगे. सम वैल्यू ऑफ नॉर्मल फ्रॉम हियर, सम वैल्यू ऑफ नॉर्मल फ्रॉम हियर, एंड mg they are going to balance each other, no problem. But now this wedge has a component of normal in this particular direction. So horizontal में एक फोर्स आ गया इस पे. Do we have any other force in horizontal direction? No. यहाँ से तो कोई फोर्स नहीं मिल सकता. कोई और फैक्टर है यहाँ which can provide any force? No. So इस वेज पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आ गया which is in this direction. It means इसको एक पुशिंग फोर्स मिल रहा है in this direction, तो उसको तो उस डायरेक्शन में मूव करना ही पड़ेगा और ये होना ही चाहिए. अगर इस कंप्लीट सिस्टम पे see it is applying some force on this, it is applying some force on this, but for complete system net force is zero. Net force is zero in x direction. इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है x डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे नीचे आ रहा है ये. इस पे नेट फोर्स x डायरेक्शन में जीरो, आई एम सॉरी y डायरेक्शन में जीरो नहीं है, इसका y में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x डायरेक्शन में इन पे इस पूरे सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं है. इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इंटरनल कोई दिक्कत नहीं. अदर देन दैट देयर आर नो फोर्सेस इन x डायरेक्शन. और सिर्फ अगर आप इसको देखो कि why this wedge is moving, this wedge is moving because of इसने जो फोर्स इस पे लगाया उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ रहा है and there is no other force to balance that force, so ये इस साइड मूव कर जाएगा. तो अब मैंने मान लिया कि इसने इस साइड कितना मूव किया है, इसने x मूव कर लिया है. So displacement of this wedge in x direction is x this side, इधर ही मूव करेगा. तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब इधर भी x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. तो अब क्या होगा, wedge will be something like this. and अब जो आपका ब्लॉक है वो इसके बॉटम पे पहुंच चुका है ना. और ये h गिवन है, these are all given and this is theta given. ये h है और ये theta है. So if you see the block has moved in x direction, what is the displacement of block on the wedge in x direction? What is the displacement of block on the wedge in x direction? So इस wedge पे अगर आप देखो तो कितना चला है वो पहले इस लोकेशन पे था और अभी इस लोकेशन पे है. तो x में कितना चल लिया उसने, इतना चल लिया. How will we will find out this? So अगर ये d है तो I can write h by d is equal to tan theta. d is equal to h by tan theta. It means h cot theta. So this d is equal to nothing but h cot theta. So on this wedge, this block has moved by h cot theta. It has shifted from this x location to this x location. यहाँ से यहाँ पहुँच गया. We are just seeing the x displacement. So it has moved, d is equal to h cot theta. लेकिन
जो ब्लॉक है, जो वेज है, वो खुद भी तो एक्स से शिफ्ट हो गया ना, इधर खुद भी एक्स से शिफ्ट हो गया, तो ब्लॉक बढ़िया h cot थीटा चल के गया था एंड प्लैंक वेज हैज मूव्ड x, सो वो कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इन दिस डायरेक्शन, इट इज ओनली दिस मच. सो इनिशियली द ब्लॉक वाज एट दिस लोकेशन and now it is at this location. So this total was h cot theta minus x. So this displacement is h cot theta minus x. H cot theta minus x. So displacement of block seen from ground is h cot theta minus x. लेकिन displacement of block on the wedge in x direction definitely it is h cot theta. जैसे यहाँ पे था, जो प्लैंक पे मैन चल रहा है उसको तो वन एंड से दूसरे एंड जाना है, तो L तो चलना ही पड़ेगा ऑन दी प्लैंक, तो प्लैंक पे वो L चल के गया बट प्लैंक खुद X से पीछे आ गया. सो फ्रॉम ग्राउंड नाउ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑन दी प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ऑन दी प्लैंक इज L plus displacement of plank is minus x, so it is L minus x. And similarly here the displacement of block is h cot theta minus x, displacement of wedge is minus x. So here we have capital M is moved by minus x and small m is moved by h cot theta minus x. Clear? So now what we'll do, we'll use those equations. So we have m1 delta x1 is equal to minus m2 delta x2. So here we'll get h is equal to, this minus minus will get cancelled, h is equal x is equal to m h cot theta divided by m plus m. ठीक है, m h cot theta divided by m plus m. अब इसी को थोड़ा सा इजियर तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा जो यूजुअल मेथड है which can be used anywhere, कहीं भी आप यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के. But some of the tricks which can be used at only some places, वो आपको बताएंगे अभी. ठीक है, so the same problem of plank and man plus this wedge and block we are going to do with that method. So now we have this wooden block or this wooden plank on which the man is standing. So ये M and this is capital M capital L. So now what I am going to do, I'll consider that the mass of the plank is completely here. It is, the complete mass of the plank is here. This system is kept on the smooth horizontal floor and all that. So now this complete mass is here. Why I am going to do like this? अब इसमें क्या होगा? When this man will move from this point to this point, when the man will move from one end of the plank to other end of the plank, observe करो क्या हो रहा है. अब पूरा का पूरा mass, all of the mass in this system is here itself. कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद जो man है वो यहाँ पे आ जाएगा ना. तो अब हमारे पास क्या है? सारा का सारा mass कैपिटल M प्लस स्मॉल m एक ही जगह पे है. It is concentrated, all the mass is concentrated at this location only. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी यही होगा. भाई अगर सारा का सारा मास एक ही जगह है, एक ही पॉइंट पे सारे मास को रख दो, तो सेंटर ऑफ मास वही होगा. सीधी सी बात है. तो बेसिकली क्या होना पड़ेगा कि जब मैन जो है अपनी जगह से इस जगह पे आ गया है, तो ये पूरा का पूरा एंड उठ के कहां पे चला जाएगा? जो इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी वहां पे चला जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को तो वही रहना है. तो अब ये सेंटर ऑफ मास बन गया है, तो इसको कहां जाना पड़ेगा? इनिशियल लोकेशन पे. मान लो अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन वाज दिस, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इस प्लैंक प्लस मैन का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था. अब क्या हो गया? जब मैन प्लस प्लैंक सिस्टम कुछ इस तरीके से हो गया, व्हेन मैन हैज कम टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, तो सारा का सारा मास इसी जगह पे कंसंट्रेटेड हो गया. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही रहेगा. इसका मतलब प्लैंक का जो ये एंड है, इसको चुपचाप उठ के कहां चले जाना चाहिए? जो इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रहना है. अब सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया है? सेंटर ऑफ मास आ गया है एट दी अनदर एंड ऑफ द प्लैंक. तो इस एंड ऑफ द प्लैंक को उठ के यहां आ जाना चाहिए. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली वो जो एंड है, दिस एंड, वो बेसिकली क्या कर रहा है? जो इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी वहां पे जा रहा है. तो क्या हम इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो अदर एंड ऑफ द प्लैंक है वहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे को तो जो पुरानी लोकेशन थी सेंटर ऑफ मास की, मेरे को वहां पे जाना है.
तो जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे कि भाई फाइंड आउट दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि चलो एंड ऑफ द प्लैंक से, इस एंड ऑफ द प्लैंक से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, अच्छा इतना दूर है, चलो वहां चलते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, और हमें इनिशियल लोकेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब मैन हैज कम टू दिस एंड, बेसिकली इस एंड को क्या करना है, उस जगह पे जाना है जिस जगह पे इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी। तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि उसको उतना डिस्टेंस कवर करना है और वो इजी होता है। कैसे, अब मैंने क्या किया, आई वांट टू फाइंड आउट द इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एंड, तो मैंने इसी को मान लिया ओरिजिन। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, एंड मैंने इस साइड ले लिया पॉजिटिव, कर सकते हैं ना सब, पॉजिटिव ले लिया तो क्या हो गया, इसका जो लोकेशन है वो क्या आ जाएगा, L,0, इसका लोकेशन क्या आ जाएगा, L,0। नाउ व्हाटएवर विल बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर। हमने इसमें क्या किया था, जो हमने वर्टेक्स वाले क्वेश्चन किए थे, I wanted to find out the location of center of mass from this vertex, तो मैंने इसी को 0 0 ले लिया, whatever will be the x coordinate, है ना, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इस ओरिजिन के हिसाब से whatever will be the coordinates of center of mass, that will be the distance of center of mass, है ना। तो सिंपल, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। तो वैसे मैंने क्या किया, इसको मैंने बना लिया ओरिजिन, और नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसको उसी जगह पे जाना है। क्योंकि बाद में क्या हुआ, ये भी यहीं पे, मैन भी यहीं पे, सारा मास यहीं पे, तो इसको उठ के यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको उठ के यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन माना, जैसे क्वेश्चन मिला हमने मान लिया, अच्छा भाई मैन को यहाँ से यहाँ जाना है, ओके हम मान लेते हैं कि प्लैंक का सारा मास यहीं पे है, ताकि व्हेन द मैन विल कम टू दिस पॉइंट, सारा का सारा मास यहाँ पे हो जाएगा। सो इसको उठ के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब हमने क्या किया, इससे फाइंड आउट किया, तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, ml डिवाइडेड बाई m प्लस m। सीधा आ गया, देखो यहां से कि फ्रॉम ओरिजिन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m स्मॉल m कैपिटल L डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो इसको कितना मूव करना पड़ेगा, इस एंड को इतना ही मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज टू मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि उससे कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। और जब ये एंड उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पूरा का पूरा प्लैंक उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। So basically what we got here we got that the displacement of plank is equal to the distance of location of center of mass, the distance of location of center of mass from the other end of the plank। क्लियर है चीज? तो इसको कितना मूव करना पड़ा प्लैंक को, जो इसके इस एंड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस था उतना ही ट्रेवल करना पड़ा। अब वैसे ही मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग फॉर दिस सिस्टम, आई एम टेकिंग ये ब्लॉक M तो यहाँ पे है, और इस वेज का पूरा मास यहाँ लोकेटेड है, इस वेज का पूरा मास यहाँ लोकेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन दिस ब्लॉक विल रीच हियर, तो सारा का सारा मास यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब इसको मूव करके कहां जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल लोकेशन थी। तो हम सेंटर ऑफ मास की इनिशियल लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मैंने मान लिया 0,0, तो इसकी x लोकेशन क्या आ जाएगी, y तो इसका h है, बट ये क्या है, दिस इज h cot थीटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, h cot थीटा, h cot थीटा, h, but we have nothing to do with y coordinate. So x of center of mass is m1x1 0, m2x2 mh cot theta divided by m plus m। ओके, सो इनिशियली शुरू में जो इस एंड से जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, mh cot theta by m plus m। तो ओके,
फ्लैंक ने वेज ने सोच लिया कि भाई मेरे से अभी सेंटर ऑफ मास, अभी मेरे से इस एंड से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, इट इज mh cot थीटा बाई m प्लस m दूर है, तो जब ये बॉटम पे पहुंचेगा उतनी देर में आई शुड मूव टू दैट लोकेशन, आई शुड मूव टू दैट लोकेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम आप पहले क्वेश्चन ही लिख लो। सो देयर इज अ सिस्टम, दिस इज अ रॉड, यहां पे एक बीड लगा हुआ है चूड़ी टाइप का, ठीक है, एंड हियर वी हैव अ बॉब ऑफ मास m, it is of mass capital M, and this rod is smooth, it is not providing any friction. Clear? So in this case, find out the displacement of bead, find out the displacement of bead on this rod when the string becomes vertical, when this string becomes vertical. Find out the displacement of bead on this rod when this string becomes vertical. Definitely this part is, this mass is released from here. So find out the displacement of this bead on the rod when the string becomes vertical. कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। So if you observe carefully what we have, when this mass is released from here, it will have a movement like this, है ना? ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में चलेगा, सर्कुलर मोशन में हमने देखा है। If you release from here, it will move like this, है ना? यहाँ से क्या होगा? ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ में आएगा। So see some intermediate instant. What I am trying to say, first thing, do we have any net force on this particle in x direction? किसी भी instant पे do we have any net force on this not particle, on this system in x direction? See, so at this instant यहाँ पे definitely there will be some tension in the string. So tension is internal. If you see, take this complete as a system, bead plus bob system, है ना? Rod is out of the system, bead plus bob system, and ये rod तो ऐसा है यहाँ पे fixed है, it is out of the system. So now on bead plus bob system, this tension will become internal. Tension will become internal. There is no friction provided from this rod, so there is no horizontal force again. कोई और possibility? हाँ, इस पे mg लग रहा है, इस पे mg लग रहा है. It is in vertical direction. Now observe this instant. So इस instant पे क्या होगा? इस पे इधर tension, इस पे इधर tension. Again tension is internal. इस पे mg, इस पे mg. Again mg is in vertical direction. So there is no net external force in x direction on this system. इसका मतलब location of center of mass या delta x of center of mass is going to be 0. Delta x of center of mass is going to be 0. इसका मतलब center of mass अपनी location change नहीं करेगा. Clear है ये चीज? तो अब अगर mass इधर shift हो रहा है x में, वो क्या हो रहा है? पहले इस x coordinate पे था, धीरे धीरे वो इस x coordinate पे आ गया. इसका मतलब the bob is moving in this direction. तो center of mass इधर shift होने लगेगा. bead बोलेगा नहीं 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 नहीं, सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं हो सकता ना, तो फिर वो क्या करेगा? वो बोलेगा हम इधर भाग जाते हैं. तो सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ऑफ दिस बॉब, सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस बीड, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन एंड नेट शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम 0, है ना? ये बोलेगा इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे इधर आ रहा है, बिकॉज मास इज गेटिंग शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन. बीड बोलेगा नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो बीड बोलेगा चलो हम भी थोड़ा सा शिफ्टिंग में हाथ बटाते हैं, एंड देन द नेट शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम 0. और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो मास पे डिपेंड करेगा, जो कि हमने यहाँ देखा था, डेल्टा x1 बाई डेल्टा x2 इज इक्वल टू m2 बाई m1. क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब दिस इज गोइंग टू गेट शिफ्टेड. ये तो सीधी सी बात है, नीचे आ रही है, बट बीड क्या होगा? बीड इधर शिफ्ट होता रहेगा. ये इधर आने की कोशिश करेगा तो बीड इधर शिफ्ट होगा. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इंटरनली कि व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग. प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? बिकॉज द मैन वाज प्रोवाइडिंग अ फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन. It was providing a friction force in this direction. Why the wedge got shifted in this direction? Because there was a component of normal in horizontal direction which was not balanced by any other force. So it moved in this direction. अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन फोर्स प्रोवाइड करेगा.
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीड कैसा है, बीड तो वर्टिकल में मूव नहीं कर सकता, बेसिकली एक क्या है, चूड़ी टाइप का है विच इज हैंगिंग फ्रॉम हियर एंड इस पे हमने एक धागा लगाया, धागे में हमने बॉब बांधा एंड देन वी रिलीज्ड इट। सो ये रॉड पे ही ऐसे ही मूव कर सकता है, तो वो किस तरीके से होगा, ऐसे होगा, है ना। तो यहां से उसको एक क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल फोर्स जो कि बीड के mg को बैलेंस करेगा। बट एट सर्टेन इंस्टेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे इधर टेंशन लग रहा है, इसको ऑब्जर्व करो पूरे को, इस पे इधर टेंशन लग रहा है और यहाँ पे mg लग रहा है। नाउ दिस बॉब इज नॉट गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रिंग हमेशा कैसे रहेगी, टाइट, और ऐसे आएगा मूव करके। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इन दिस डायरेक्शन इज नॉट देयर। तो mg का जो ये कंपोनेंट है, मान लो ये थीटा है, लेट्स से किसी इंस्टेंट पे, तो mg cos थीटा विल बैलेंस टेंशन एंड mg sin थीटा विल मेक दिस बॉब टू मूव लाइक दिस, है ना। टेंजेंशियल कैसा मूव करेगा, वो टेंजेंशियल मूव करेगा बॉब, टेंजेंशियल perpendicular to the length of the string. So यहाँ पे mg sin theta will make the bob to move and mg cos theta will balance the tension. अब इस पे देखते हैं, so now here we have tension. टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। So in downward direction this bead has mg plus some component of tension, mg plus some component of tension. So this force will get balanced with this normal. यहाँ से जो उसको रॉड से जो नॉर्मल मिलेगा, ऐसे ऐसे लटका रहेगा और यहाँ से उसको एक नॉर्मल मिलेगा। सो ये आपका बीड है और ये आपकी रॉड है। तो दिस नॉर्मल विल बैलेंस कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्लस mg। अब ये टेंशन के कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा? यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हो सकता है कि ये इधर मूव करने की कोशिश करता, यहाँ से उसको फ्रिक्शन मिलता एंड द मूवमेंट ऑफ द बीड इज स्टॉप्ड। But now there is no friction provided from this rod, so because of which it has a net force in x direction. We are just talking about only bead. We are not talking about the complete system. So this bead has some force, some net external force in this direction, so it will move in this direction. और उसको move करना ही चाहिए from the concept of zero movement of center of mass. Clear? So it should move in this direction. ठीक है? अब हम देखते हैं, समझ में आ गया हमें कि क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कितना मूव करेगा। सो लेट्स से इट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस x। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। सो हमारे पास जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है। इनिशियली बीड वाज लाइक दिस एंड बॉब वाज लाइक दिस। Finally what is going to happen? The string is becoming vertical, मतलब bead, string, bob all are at the same location. तो center of mass भी क्या होगा, उसी लोकेशन पे होगा, उसी x पे होगा। All the masses are on the same x. तो जो आपका जो center of mass होगा वो भी उसी x पे होगा। सारा का सारा मास यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो सारा का सारा मास अगर इस लाइन पे है तो center of mass भी इसी लाइन पे होगा। Clear? So now when the string has become vertical, let's say bead has moved by x, तो bead आ गई यहाँ पे, string बन गई vertical, ठीक है। इसका मतलब string जो bob है वो यहाँ से यहाँ आ गया है। क्लियर है ये चीज? Now it has moved by x, और x में what is the displacement of bob? What is the displacement of bob in x direction? So basically initially it was at this x, इस x पे था, बाद में वो इस x पे आ गया। So, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x डायरेक्शन में, इतना हुआ है। अगर ये टोटल लेंथ है l और ये है x, तो ये क्या आ जाएगा l माइनस x। क्लियर है ये चीज? नाउ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई एट दिस लोकेशन ओनली। सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई एट दिस लोकेशन ओनली। इसका मतलब अगर हम सेकेंड वाला जो मेथड है जिससे हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, अगर हम उससे देखें तो आपका जो बीड है वो बेसिकली कहाँ चला गया, वो इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे उसको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मास अब इस लोकेशन पे है, तो सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ पे आ गया, इट हैज मूव्ड टू इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द कंप्लीट सिस्टम हैज मूव्ड टू इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे है तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे होना चाहिए। इसका मतलब द कंप्लीट सिस्टम इज एट द इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ समझ में आ गई बात? क्योंकि सारा का सारा मास एक जगह है तो सेंटर ऑफ मास भी इसी जगह पे है, तो कहां पे होना चाहिए, सारा का सारा सिस्टम कहां पे होना चाहिए अभी, इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम फटाक से इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
निकालेंगे, हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड। तो हम देखेंगे कि इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बीड से कितना दूर था, जितना दूर था उतना ही बीड ने मूव किया है, क्योंकि अब वो कहां पे पहुंच गया, इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गया। सो हमने इसी को ओरिजिन मान लिया। इसको अगर ओरिजिन माना, सो अब पुराना जो सेंटर ऑफ मास थी उसकी लोकेशन क्या थी, तो m1 x1 x of center of mass is m1 x1 which is 0, m2 x2, so m into capital L divided by m plus m. So initial location of center of mass was what, it was ml by m plus m. Let's say यहाँ पे था, तो अभी क्या हुआ, मान लो ये बीड है आपका और ये है, तो इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज हियर। कितना दूर था, हमने क्या निकाला, ओरिजिन से x ऑफ सेंटर ऑफ मास आया ml by m plus m, तो ये कहां पे था, x ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज इक्वल टू ml by m plus m। नाउ जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में जो नया सेटअप जो बन गया आफ्टर द मूवमेंट ऑफ बॉब प्लस बीड, ऑल ऑफ देम आर एट द सेम x लोकेशन, ऑल ऑफ देम आर एट द सेम x लोकेशन। तो वो यहां तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यहां अगर रहे तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, अगर यहां रहे तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। उनको कहां आना पड़ेगा, इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे आना पड़ेगा। इसका मतलब इसको इधर जाना पड़ा और इसको इधर जाना पड़ा। इसका मतलब बीड हैज टू मूव द डिस्टेंस which was the bead has to move how much distance, equal to the initial location of center of mass or the distance of center of mass from this bead. बीड का जितना सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस था उसको उतना ही चलना पड़ा। इसको कितना चलना पड़ा, इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ml by m plus m। ठीक है, तो इस पूरा सिस्टम थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, बीड प्लस बॉब, ये सब कुछ इसी जगह पे आ गया है। तो किस जगह पे आना पड़ेगा, अगर सारे के सारे एक लोकेशन पे आ गए तो किस लोकेशन पे आना पड़ेगा उनको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो जहां है सेंटर ऑफ मास वही रहने वाला है। तो वो कहां होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। इनिशियल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बीड से कितनी दूर है, इतनी दूर है, तो बीड को उतना ही चलना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड विच इज इक्वल टू ml divided by m plus m. Now next question is, if we have a balloon of mass m and a man is trying to climb, ठीक है, on this balloon, this length is L, he is trying to reach to this point and this is the this is gravity free space. So what will be the displacement of balloon, what will be the displacement of balloon when the man has moved to this point, what will be the displacement of balloon when man has moved to this point. You can write point A or O, whatever you want to write. So what will be the displacement of balloon. So again, if we see, there are only forces which are because of interaction between string and the man. There are no other forces. Clear? So अब इस पे क्या हो रहा है, when he is trying to move up, क्या करेगा वो, इस पे टेंशन लगेगा ऊपर, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी along the length of the string. So इस पे क्या लगेगा, टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इस पे टेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे भी एक फोर्स है, इस पे भी एक फोर्स है, बट वो क्या है, कैसे हैं, वो सारे के सारे फोर्स कैसे बन गए, इंटरनल। ठीक है ना। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, मैन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तो स्ट्रिंग उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। सो ऑन द मैन द टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम मैन एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसमें टेंशन जनरेट हो गया है, तो इट विल ट्राई टू अप्लाई दैट टेंशन ऑन दिस बलून अवे फ्रॉम द बलून। ठीक है, तो अब इस पे क्या हो रहा है, इफ यू सी ऑन दिस बलून, सिर्फ बलून को अगर ऑब्जर्व करो, इट हैज अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड डज इट हैव एनी अदर फोर्स व्हिच कैन बैलेंस दिस डाउनवर्ड फोर्स, नो। तो जब मैन ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आएगा, when this man will move up balloon will come down, और होना भी चाहिए। क्या हुआ यहाँ पे, जब मैन ऊपर जाने लगा तो सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लगेगा, बिकॉज मास इज शिफ्टिंग अपवर्ड, स्लोली सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट ऊपर। बट ऐसा तो नहीं होना है, बलून बोलेगा नो 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 दिस कैन नॉट हैपन, तो बलून विल ट्राई टू मूव डाउन, बोलेगा जितना इसके ऊपर आने की वजह से जितनी शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास हो रही है, उस शिफ्टिंग को चलो हम कैंसिल करते हैं। सो दिस व्हेन दिस मास विल मूव अप सेंटर ऑफ मास विल ट्राई टू मूव अप, so it will try to move down, so because of which center of mass will try to move down।
अब शिफ्टिंग इसकी वजह से जितनी हुई और शिफ्टिंग इसकी वजह से जितनी हुई, इट विल गेट कैंसिल्ड, जो कि यहाँ पे है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि बलून हैज मूव डाउन बाय x। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे था, x ले लो या y ले लो, y ले लेते हैं बिकॉज दिस इज वर्टिकल। सो दिस पॉइंट वाज हियर, अब वो यहाँ पे आ गया। और मैन का क्या हुआ, मैन वाज हियर एंड नाउ इट इज एट दिस पॉइंट। मैन अब यहाँ पे क्लाइंब होके यहाँ पहुंच गया। तो बेसिकली इफ यू सी इन द बलून, if you see in the balloon, so this is the length of the string। तो अगर आप बलून पे देखो तो this man has moved how much distance, वो बलून पे कितना लेंथ चढ़ के गया, कैपिटल L, बट बलून खुद कितना नीचे आ गया, x। तो वो L तो ऊपर गया, बट बिकॉज बलून हैज मूव डाउन बाय x, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L माइनस x। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो, so this is the displacement of man, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। तो यहां से टोटल कितना गया था, वो टोटल तो गया था L, बट बिकॉज बलून हैज मूव डाउन बाय y, x बोल दिया मैंने। सो यहाँ पे क्या हो गया, बलून हैज मूव डाउन बाय y। तो ये टोटल खुद चल के गया था L, लेकिन बलून y से शिफ्ट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज L माइनस y। तो दिस हैज अ वैल्यू L माइनस y। सो डिस्प्लेसमेंट m का कितना हो गया, y डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज L माइनस y अपवर्ड। बलून नीचे आया है y से और मैन L गया ऊपर, y आया नीचे, सो L माइनस y। सो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिया है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m इज L माइनस y and displacement of m is minus y। Clear? So what we write, m1 x1 is equal to minus of m2 x2। So this will get cancelled, so we have y is equal to again ml divided by m plus m। This is the displacement of balloon, and in which direction, in downward direction। Why in downward direction, because if we see the balloon as a system, so it has a net downward force, so its displacement will be in downward direction। And also because man is moving upward, there is a possibility of center of mass moving upward, but that possibility is not present here। Why? Because the net force in this direction is 0, so center of mass cannot get shifted। So when mass will move up, this will have to move down to compensate the effect of the movement in center of mass। Clear है ये चीज। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। So we have a system, we have a boat of mass 100 kg and length 10 meter, this length is 10 meter। Here we have a man A of mass, let's say 40 kg, and here we have a man of mass 60 kg। ठीक है। सो नाउ ये पूरा सिस्टम बढ़िया पानी में है, एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर और फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर इज 0। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या मानना है, 0 या नेग्लिजिबल। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, when A and B exchange their position। Find out the displacement of boat when A and B exchange their position। Find out the displacement of boat when A and B exchange their position। Clear? So अब यहाँ पे क्या है, A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है। Clear है? So 40 kg is moving in this direction, 60 kg is moving in this direction। तो अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी टेंडेंसी किधर शिफ्ट होने की होगी, तो अब यहाँ पे 40 kg मूव कर रहा है, तो भाई मास पे तो डिपेंड करता ही है। अगर हैवी मास ज्यादा मूव करेगा, हैवी मास अगर इधर मूव कर रहा है और लाइटर मास इधर मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो किसको फॉलो करने वाला है, हैवी वाले मास को। तो डेफिनेटली जो अगर 60 kg वाला मास इधर जा रहा है, 40 kg वाला इधर आ रहा है, तो हैवी मास इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू फॉलो दैट बॉडी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पॉसिबिलिटी इधर शिफ्ट होने की है। तो अब बोट क्या करेगा,
क्योंकि ये 40 kg इसके इफेक्ट को कैंसिल तो नहीं कर पाएगा। मान लो ये भी 60 kg होता, इफ दिस इज ऑल्सो 60 kg, तो बताओ अगर दोनों ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, इज देयर एनी चेंज? नो चेंज। तो क्या होगा, जितना इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला था, इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला था, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एंड नाउ सेंटर ऑफ मास इज ऑलरेडी इट इज एट सेम लोकेशन। तो बोट को चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिफोर द एक्सचेंज ऑफ पोजीशन वही सिचुएशन है, वही ओरिएंटेशन है, आफ्टर द चेंज ऑफ पोजीशन वही ओरिएंटेशन है, तो बोट को अपनी लोकेशन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। बट अब हमने क्या किया, यहाँ पे है 40 kg। अगर 40 kg है, इट मींस अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसको फॉलो करेगा। सो द टेंडेंसी ऑफ सेंटर ऑफ मास टू गेट शिफ्टेड इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि 40 kg इसके वजह से जो शिफ्टिंग है उसको इट इज नॉट एबल टू कंपनसेट, तो बोट क्या करेगा, बोट इधर मूव करेगा। ये हमने गेस लिया है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी यू कैन टेक एनीथिंग। आप मान सकते हो कि भाई नहीं, बोट तो इस साइड डिस्प्लेस हुई है। अगर आपने ऐसा माना और इफ यू आर रॉन्ग, अगर आपका एजम्पशन रॉन्ग है, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। हमने मान लिया कि ये इधर, मान लो मैंने माना कि इधर ये 10 मीटर शिफ्ट हुआ है, अगर मेरा एजम्पशन रॉन्ग है तो वो 10 की जगह -10 आएगा। क्लियर? तो -10 आया, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट नहीं इधर शिफ्ट हुआ है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया, मैं मान रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 60 kg है, यहाँ पे 40 kg है, सेंटर ऑफ मास इसको फॉलो करेगा और 60 kg इधर मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो बोट को इधर चलना पड़ेगा। क्लियर? अब मैंने माना कि बोट इज गेटिंग शिफ्टेड बाय x इन दिस डायरेक्शन, तो वी विल ड्रॉ द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम और द बॉडीज इन दिस सिस्टम। तो अब हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। इट हैज मूव्ड बाय x, तो अब क्या होगा, इट हैज मूव्ड बाय x, तो अब ये वाला एंड भी कहां पे आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां से बनाया, यहां से लेकर के यहां तक 10 मीटर लेंथ ऑफ द बोट एंड 100 kg। क्लियर? और ये तो जैसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ B इज हियर, 60 kg वाला आदमी यहाँ पे है, 40 kg वाला आदमी यहाँ पे है। दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर? सो नाउ इफ यू सी ऑन द बोट, if you see on the boat, displacement of A is how much? +10. I am taking plus in this direction, minus in this direction. Displacement of A is +10. Displacement of B is -10. But is this the actual displacement? No. Why? Because boat is also moving ना. तो आप जब ग्राउंड से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम जो दिख रहा है बोट पे वही नहीं हुआ, इट इज डिफरेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। So the boat has moved from this location to this location and A has moved from this location to this location. So basically क्या हुआ है, A खुद चल के गया on the boat 10 और बोट चल के गई x, तो ग्राउंड से टोटल डिस्प्लेसमेंट A का कितना हो गया, बोट पे चल के गया 10 और बोट खुद चल गई x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A will be 10 plus x। और अगर यहां से आप देखो तो क्या होगा, ये था इस जगह पे, A was here and now A is here. So कितना है, ये तो है कितना, this is 10, this is the length of the boat, this is 10 plus this is x, so its displacement is 10 plus x। displacement of B क्या हुआ, displacement of B on the boat, B चल के आया था 10, when he was moving from this end to this end, he has moved a distance of 10 meter, but boat इधर चली गई कितना, x से, so 10 चल के बढ़िया मस्त वो 10 चल के इधर गया and boat has moved by x, so its displacement is 10 minus x, 10 minus x, so its displacement is, B का displacement हो जाएगा 10 minus x and its displacement is in this direction। net जो है वो तो इस डायरेक्शन में ना, 10 इतना चल के गया और फिर x इतना चल के आया, तो उसका displacement is from this point to this point which is in this direction, so it will be minus of 10 minus x। अब देखते हैं यहां से, तो इनिशियली B was here, B इस जगह पे था और अभी B इस जगह पे है,
नाउ व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? ये तो x है, ये बोट का डिस्प्लेसमेंट है ना, बोट यहां से यहां शिफ्ट हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। सो अब यहाँ पे क्या है, जो b है वो पहले यहां था और नाउ b इज हियर, सो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ये टोटल कितना है, दिस टोटल इज 10, ये देखो दिस टोटल इज 10। सो अब यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ये, तो दिस टोटल इज 10 एंड दिस इज x, सो दिस minus this is going to be equal to this, so this is the length 10 minus x. Now he has moved from this to this location to this location, तो उसका displacement किस साइड है, इस साइड, तो it will be with negative sign. And what is the displacement of boat? Displacement of boat is x in positive direction. Displacement of boat is x in positive direction. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, when we have two particles, हमारे पास आया था m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 is equal to 0, यही आया था, m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 is equal to 0। क्या था हमारे पास, x of center of mass is equal to m1 x1 plus like this, फिर हमने निकाला था डेल्टा x of center of mass is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus up to mn delta xn xn divided by m total is equal to 0. So sum of m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 plus m4 delta x4 like that is equal to 0. So here we will use that only. टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने ये कर दिया। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, if you have 3 particle system, so if 2 particles are moving in this direction and one particle is moving in this direction, तो फिर हम क्या करेंगे, सारे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनका m1 डेल्टा x1 एंड सारे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनका m डेल्टा x, उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वही हमने यहाँ पे किया है, m1 डेल्टा x1, m1 इधर मूव किया, m2 इधर मूव किया, तो m1 डेल्टा x1 माइनस m2 डेल्टा x2। क्लियर? तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बढ़िया ही हैं। तो मैंने क्या किया, दिस इज a is 40 kg, b is 60 kg, boat is 100 kg। तो अब हमने क्या किया, 40 into 10 plus x plus 60 into minus of 10 minus x, तो x minus 10 plus 100 into x is equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास x में क्या क्या आ गया, 40x, 60x, 100x, 200x is equal to 600, इधर लेके जाओ, minus 400, कितना आ गया, x is equal to 1 मीटर, यहाँ से आया 200 डिवाइड बाय 200, x is equal to 1 मीटर। So displacement of boat is 1 meter, displacement of A is 11 meter, displacement of B is 9 meter and in this direction, तो हमने लगा दिया -9। So displacement of A कितना है, 11 meter, displacement of boat is 1 meter and displacement of B is -9 meter। So now one last question is, again we have a boat on which 2 men are there, one is of 60 kg, another is of 50 kg and this boat is of 40 kg। Again friction from water is negligible, so if these two person want to meet, they meet at the midpoint of the boat, if they meet at the midpoint of the boat, then what will be the displacement of boat? Clear? So they want to talk to each other, so they are coming to the midpoint of the boat, then what will be the displacement of boat? Clear? तो यहाँ पे हम लोग boat trick use कर सकते हैं, why? Because when they will definitely हम यहाँ पे क्या consider करेंगे, that the boat mass of the boat is concentrated at the center of the boat, या फिर इसका center of mass हमने मान दिया यहाँ पे है, तो now they are coming to this location, तो after some time क्या हो जाएगा, सारा का सारा mass एक जगह है, total 60 plus 50 plus 40 it is 150 kg mass is located at this location only, so center of mass वहीं पे होगा। तो बेसिकली बोट को क्या करना पड़ेगा, बोट को अपने सेंटर को उस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरी जगह पे रखा हुआ है, सो आई शुड मूव टू द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट फाइंड आउट कि कितना जो सेंटर ऑफ मास अभी जो है उसका इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है।
सो बोट बोलेगी कि हाँ मुझे इस लोकेशन पे जाना है। कितनी दूर है ये लोकेशन मुझसे, तो कैसे निकालेंगे, इसी को मान लिया हमने ओरिजिन, सो दिस इज ओरिजिन। एंड अगेन लेंथ ऑफ द बोट इज 10 मीटर, तो ये 5 मीटर पे है, इसका आ जाएगा -5,0, इसका आ जाएगा 5,0। क्लियर? सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, इसका खुद का आ जाएगा 0,0। सो x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाउ मच, 60 इंटू -5 प्लस 50 इंटू +5 डिवाइडेड बाई total is 150. So here we have -30 plus 25 divided by 15, that is -5 by 15, तो यह जाएगा -1/3. So the location of the center of mass, initial location of center of mass from the midpoint of the boat is how much, -1/3. तो अब क्या हुआ कि भाई अभी एट द स्टार्टिंग जो सेंटर ऑफ मास था वो मिड पॉइंट से -1/3 के डिस्टेंस पे था। नाउ व्हेन द mass 60 kg, mass 50 kg and mass 40 kg all are at the same location, center of mass is going to be at this location, but वो वहां पे नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए। So mid point of the boat has moved in this direction by -1/3. उसको पता है कि center of mass मेरी जगह से कितने दूर पे है अभी, initially at -1/3 distance, and now when those two persons are coming at this location, center of mass is going to be at the midpoint of the boat, so I should move at this location. And what is the distance of that location from initially midpoint of the boat? It is -1/3. तो -1/3 shift हो जाएगा. So now center of mass was there and it is there. So boat will move by -1/3. So इसका जो usual method है उसको solve करके देखेंगे। पहले ले लेंगे, पहली चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 kg इधर मूव कर रहा है, 50 kg इधर मूव कर रहा है। So because of 60 kg the center of mass will have tendency to move in this direction. Because of 50 kg the center of mass will have tendency to move in this direction. But definitely जो 60 kg का जो इफेक्ट होगा 50 kg उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा अगर दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तो। इसलिए बोट को क्या करना पड़ेगा, इसको पता है बोट को पता है यहाँ पे कि 60 kg इधर चल रहा है, 50 kg इधर चल रहा है, तो नेट जो सेंटर ऑफ मास है 60 kg की वजह से सेंटर ऑफ मास इधर मूव करने का कोशिश किया, 50 kg की वजह से इधर मूव करने की कोशिश किया। ज्यादा कौन सा मास है, ये है, तो सेंटर ऑफ मास का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड होगा, जो कि हमें नहीं होने देना है। तो बोट क्या करेगा, बोट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि बोट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और अगर इतना नहीं सोचना है तो जस्ट टेक रैंडमली कि लेट्स टेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इज इन दिस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज इन दिस डायरेक्शन, and if your assumption is wrong then you will get answer in negative. तो मैंने मान लिया कि displacement of boat is x in this direction. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर 5 चल रहा है, it is moving 5 meter on the boat in this direction and boat खुद इधर चल रही है, तो क्या हो जाएगा, 5 ऐसे गया और x इधर आ गया, तो 5 minus x, its displacement is 5 minus x in this direction. ये खुद 5 इधर गया, ये खुद 5 इधर गया और बोट ने x और ले गया, तो कितना हो जाएगा इसका, 5 plus x, but in this direction, so it will be minus. And boat is moving x in this direction. So you have displacement of all the three object of the system. Now you can use m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 is equal to 0, and from there you must get the displacement of boat is equal to 1/3 in this direction. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है प्लीज आपका जो वीडियो है उसको पीछे करके कंप्लीट योर नोट्स एंड डू योर असाइनमेंट्स। थैंक यू।